Yes. Good afternoon to one and all present over here. Thank you for coming in today's session. This is Komal Gawande, student of CSE Department System. Firstly, we will see the journey of SAGE Group through a tremendous video. I'm starting video. Hope you really enjoyed the whole video. Firstly, I would like to welcome you all. I really appreciate you guys for attending today's session. Now I would like to welcome our HOD ma'am, Dr. Kalpana Rai, and all faculty members. Let me introduce our today's guest, Ms. Ankita Jain.
She is alumni of 2014 batch, and she was very sincere, obedient, and active student. Now working in Nagero as a business intelligence. Today she will deliver us an expert lecture and visualization and designing. She will show you the journey from college to company. Uh, now the now now the session is over to you, Ankita ma'am. Please carry on. Thank you so much, Komal. Thanks a lot. First of all, ma'am, the video was very nostalgic. मतलब वो जो आपने पूरा college campus and the students and machine labs, so that actually took me to the previous college days, and I was it was so memorable. I got emotional also. So that is the place where we all had a great time. We all had fun, and all those faculty members, we had a very good time. Anjana ma'am was the first one. I mean, she's still there in the SIRT. I can see Sneha ma'am also. So yes, so it was all a very good journey in SIRTE. Thank you, Komal, for showing that video. So first of all, I'll introduce myself. I'm currently working as a BI expert, business intelligence expert in Nagarro. So Nagarro is a software company in now. So I mean, in 2022, I have recently completed 7 years of experience in my expertise in different visualization tool, different BI expertise, and other those things. So yes, I mean about my career, it is all because of SIRTE. I mean, I did computer science and engineering in 2014. I have completed it in 2014, and it was an experienceful journey through SIRTE, and with the help of all those teachers, all the faculty, I reached this place. So let me just share my screen and let me know if you all can see it. Yeah, let me know if you all can see my screen. Yes, दिख रही है अंकिता. Yeah, okay. Yes, visible. Yeah. So this is all about my journey. I mean, I joined SIRT in 2010 and then I graduated in 2014. Then my very first job was Smartmove Innovation Private Limited. So it was all into data visualization, data testing, and designing great dashboards. So मतलब जब मैंने 2014 में के बाद अपनी जो फर्स्ट जॉब स्टार्ट की, so it was a great experience altogether. क्योंकि starting college life, slide show कर when दो. Slide show पर डाल दो. Slide show. Yes. Students, can you please just mute yourselves? क्योंकि ये background noise है ना बहुत ज़्यादा echo हो रहा है. Okay. Yeah. So in 2014, I joined my first company. So that was Smartwork Innovation Private Limited. So वहाँ पर मेरा काम totally visualization में था. Like how can I design different dashboard? Data को आप कैसे analyze करते हो? वो सारी चीजें. Then I moved. इसे अपन नहीं बोल रहा था. किससे चलो मेरे को पता था ही नहीं. सही लेते हैं ना किसी को. Then I moved to Gurgaon and then I joined Evaluator. And उसके बाद my third company was Accenture Solution. And now I'm in Nagarro. So
इट वॉज टोटली अबाउट अ लर्निंगफुल एंड एक्सपीरियंसफुल जर्नी। एक जगह से जब आप दूसरी जगह कॉलेज के बाद एक प्रोफेशनल लाइफ में जाते हो, सो दैट इज टोटली अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। आई होप अभी आप लोग 6 सेमेस्टर में हो, एंड उसके बाद जो वो प्रेशर होता है टू हैव अ जॉब एंड हाउ विल यू गेट अपॉर्चुनिटी, सो दैट इज different, and I can understand your pain, your pressure at this point of time. So वो हमारे ऊपर भी था कि सारी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद एंड बीइंग टॉपर, समटाइम्स नॉट बीइंग अ टॉपर, सो व्हाट इज द सिनेरियो, जॉब किस तरीके से मिलेगी, कैसा आपका करियर पाथ चलेगा। सो आई कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट काइंड ऑफ प्रेशर यू गाइज आर इनटू, but still, I mean, just keep on learning and keep brushing up your skills, and I think that is the only key that will help you in understanding and in getting new job and making your career path. Now I'll go to the another slide and which will show you what is the field where I'm into. मतलब मैं भी जहाँ पर काम कर रही हूँ तो वो किस चीजों के अराउंड घूमता है, क्योंकि अभी I can understand अभी आप लोग जिस सिचुएशन में हो, so you guys must be hearing so many different tools, कई कई नए टूल्स के आपने नाम सुने होंगे, कई सारे नई टेक्नोलॉजीज के नाम सुने होंगे, कई सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के नाम सुने होंगे, बट वो उतना हमें क्लैरिटी नहीं होती है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि वो सारी चीजें हैं क्या, या उन पर काम करने से आपकी ग्रोथ कहाँ पर होगी, या किस पर जाने से आपकी ग्रोथ बढ़ेगी। सो आई कैन अंडरस्टैंड। सो मैं एक बार आपको अपनी फील्ड का एक ब्रीफ देती हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली माय फील्ड इज, मेरा काम क्या होता है। आप कॉलेज से निकल के जब किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हो, सो व्हाट आर देयर एक्सपेक्टेशंस, व्हाट डू द कंपनी एक्सपेक्ट, व्हाट इज द प्रोफेशनल लाइफ। सो लेट मी गो टू द अनदर स्लाइड। सो किसी को पता है, मतलब कोई भी अभी मुझे बता सकता है क्या कि जब आप डेटा विजुअलाइजेशन आपने जब सुना या आपको पता चला कि देयर वुड बी वन सेशन ऑन डेटा विजुअलाइजेशन, सो किसी को हिट किया, किसी को स्ट्राइक किया, लाइक व्हाट इज डेटा विजुअलाइजेशन, होता क्या है, किस पर सेशन है, क्या हम सीखने वाले हैं, क्या होगा इस सेशन में। सो एनी आइडिया अबाउट व्हाट इज दैट? एनीवन कैन कम अप। आप लेट्स ट्राई टू मेक इट अ इंटरेक्टिव सेशन। मतलब आप लोग बोलोगे नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा ना, मतलब एक तरफ से अगर बात चलेगी तो इट विल नॉट बी एन इंटरेक्टिव सेशन। जस्ट कम अप, लेट मी नो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेटा विजुअलाइजेशन, आपको क्या लगा, व्हाट वुड बी दिस सेशन ऑल अबाउट। सो लेट्स हैव अ चिट चैट, ओपन अप गाइस, बातें करते हैं। ओके, आई थिंक एक दो स्लाइड के बाद आप लोग का इंटरेक्शन मेरे साथ थोड़ा सा होगा। एनीवेज, सो डेटा विजुअलाइजेशन, जैसे अभी आपको यहाँ पे छोटे छोटे ये चार्ट्स दिख रहे हैं ना, ये कुछ इस तरीके के या डिफरेंट बार चार्ट्स। सो डेटा एंड विजुअलाइजेशन, दीज आर टू वर्ड्स, ठीक है। तो डेटा तो नॉर्मली जैसे आप देखते हो आपके पास एक्सेल फाइल में होता है, या मैं जो अभी बोल रही हूँ दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ डेटा, ठीक है। ये स्क्रीन पे जो भी रिकॉर्ड हो रहा है दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ डेटा। सो वट एवर रॉ मटेरियल आपके पास जो भी है, वट एवर इंफॉर्मेशन यू हैव, सो इट इज ऑल, you can call it as data, ठीक है। मैं जो बोल रही हूँ that is also a collection of few words and we can consider it as data। जो अभी आप सेशन में अपने एग्जाम्स में सेमेस्टर्स में लिख कर आए हो, that was a kind of data जो आपके पास था और आपने अपनी कॉपियों में उसको रिफ्लेक्ट किया। सो डेटा विजुअलाइजेशन इज समथिंग कि आपके पास जो रॉ मटेरियल है, आपके पास जो डेटा है, उसको आप एक विजुअल, एक अच्छा, एक सुंदर फॉर्म कैसे दो। क्योंकि सपोज अगर मेरे को आपसे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए और आप उसे सिर्फ मेरे पास एक ABCD फॉर्मेट में या कुछ वर्ड्स में या कुछ 4-5 रो में आप अगर मुझे लिख कर दे दोगे, तो दैट विल नॉट बी अ हेल्पफुल थिंग फॉर मी। क्योंकि किसी के भी पास आज के टाइम में इतना टाइम नहीं होता कि वो 100 रो को पढ़े, 100 रोज 100 कॉलम्स को देखिए, फिर समझे कि अच्छा ठीक है ये डेटा है, इससे ये निकल कर आ रहा है, तो वो इतना हेल्पफुल नहीं होता। रादर देन अगर हम सेम चीज को, सेम 100 रोज को अगर आप किसी सुंदर से विजुअल में, सुंदर से ग्राफ में, सुंदर सी ड्राइंग में अगर आप प्रेजेंट करते हो, तो वो हमेशा हेल्पफुल होता है। सो लाइक यू कैन सी, ये एक ट्रेंड लाइन चार्ट है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, ये बार है, इसके ऊपर ये ट्रेंड लाइन है। सो इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ डेटा अंडरस्टैंडिंग कि मेरे पास 5 तरीके की चीजें हैं जिसपे डिफरेंट काउंट है, कि कोई बार छोटा है कोई बार बड़ा है। सो इट इज ऑल अबाउट द डेटा अंडरस्टैंडिंग। सो डेटा विजुअलाइजेशन बेसिकली यही है कि हाउ कैन यू रिप्रेजेंट योर डेटा, हाउ कैन यू ब्यूटिफाई इट,
कितने खूबसूरती से आप अपने डेटा को किसी के भी सामने प्रेजेंट कर सकते हो। सो यही मेरा काम होता है। अगर अब मैं आपको अपना काम बताऊं, व्हाट आई एम डूइंग इन नगारो, सो हमारे पास डिफरेंट टाइप के क्लाइंट्स आते हैं, डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स आते हैं। जैसे अभी आपने अपने मिड सेम में या मे बी माइनर प्रोजेक्ट, मेजर प्रोजेक्ट में कुछ तरीके के प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे किसी किसी टॉपिक पे। सो कंपनीज में भी हमारे साथ यही होता है। हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं डिफरेंट टाइप के अपनी प्रॉब्लम्स लेके कि यार हमारे पास इतना सारा डेटा है, रिपोर्टिंग बहुत सारी है, लोग इतने सारे हैं, तो वो डेटा मैनेजमेंट बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए भी करना, किसी भी छोटी कंपनी के लिए करना। सो देन दे कम टू अस, देन दे कम टू बिग कंपनीज जहाँ पर हमारे जैसे रिसोर्सेज होते हैं, हमारे जैसे एम्प्लॉय होते हैं, और फिर हम उनके डेटा को और मैनिपुलेट करते हैं, उसको सुंदर से डैशबोर्ड में रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं। सो दिस इज व्हाट माय वर्क इज ऑल अबाउट। सी, so this kind of dashboard, this is the whole work that I do. ये मैंने अपना ही एक डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट यहाँ पर पेस्ट किया है। बहुत एग्जैक्टली मैं इसको क्लियर कट नहीं दिखा सकती थी बिकॉज आई हैव सम प्राइवेसी इश्यूज, क्योंकि मेरी कंपनी का डेटा है या मेरी कंपनी का कोई काम है, सो आई कैन नॉट ओपन इट अप। इसलिए मैंने इसको ब्लर करके कुछ कुछ चीजें शो की हैं। ठीक है, सो सपोज एक एग्जांपल से मैं बताती हूँ आपको। दिस इज अ डैशबोर्ड, यहाँ पे ये एक छोटा सा मैप है, मैप पे ये बुलेट पॉइंट शो कर रहे हैं। अब अगर मेरे पास नॉर्मल सी एक्सेल फाइल होगी जहाँ पे मैंने लिखा होगा कि ठीक है भोपाल में इतने स्टूडेंट्स हैं, भोपाल के इस एरिया में इतने स्टूडेंट्स हैं, तो आपको रो बाय रो एक एक चीज पढ़नी पड़ती, पूरा पूरा उसे देखना पड़ता। ठीक है, बट अगर मैं उसी चीज को एक पिक्चर फॉर्मेट में, एक सुंदर से फॉर्मेट में अगर डिजाइन कर दूँ, दैट वुड बी इजी। अब इससे क्या होगा कि आई कैन इजीली अंडरस्टैंड कि ठीक है दिस इज अ वर्ल्ड मैप, यहाँ की वर्ल्ड की इस पार्ट में मेरे पास इतना नंबर ऑफ पीपल हैं, वर्ल्ड के इस पार्ट में मेरे पास इतने नंबर ऑफ पीपल हैं। सो दिस गिव्स एन इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट काइंड ऑफ डेटा यू हैव एंड व्हाट काइंड ऑफ पिक्चर इट इज शोइंग। ठीक है, लाइक हेयर ऑल्सो यू कैन सी कि 2020 में मेरे पास इतना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कॉलेज में ज्वाइन किए, देन ये थोड़ा सा इसके बाद कम हुए हैं। देन अगर आप ब्लू पोर्शन पे देखो, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इंक्रीजिंग। सो इट इज ऑल्सो गिविंग मी अ ट्रेंड पैटर्न कि पहले तक मेरे पास कम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल हो रहे थे, उसके बाद धीरे धीरे ये नंबर बढ़ रहा है और धीरे धीरे आगे और नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं। So any question, any curiosity? अभी I can understand कि अभी आपको बहुत questions तो नहीं निकल कर आएंगे because this is something very new to you, but still मतलब एक होता है ना कि curiosity कि मैम आप ऑफिस में क्या काम करते हो, how do you manage with the people, किस तरीके के लोग होते हैं। so any question I'm open for all। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ visualization या कुछ पढ़ाई से related question पूछने हैं। so this session is not about पढ़ाई or anything। So whatever kind of questions, whatever kind of doubts, आप आराम से पूछो। It should be an interactive session। Anyone can come up। Any silly doubt, कोई silly doubt का कोई यहाँ पे benchmark नहीं है। हेलो आप कितनी भी खराब से खराब अच्छी से अच्छी बात पूछ सकते हो। हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। हाय दिशा। मैम ये डैशबोर्ड जो आपने बनाया है ये किसी आईडी से बनता है? ये मैं एक्चुअली नेक्स्ट स्लाइड पे आपको दिखाने वाली थी, बट ठीक है, गुड क्वेश्चन, मैं आपको पहले वो स्लाइड पर लेके जाती हूँ। सो क्या होता है ना कि जैसे आप लैंग्वेज बनाते हो, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पे काम करते हो, कोडिंग लैंग्वेज पे काम करते हो, तो बहुत सारी कोडिंग लैंग्वेज होती है, जैसे C++ होता है, जावा होता है, वैसे ही डिफरेंट विजुअलाइजेशन टूल्स होते हैं। मैं काम करती हूँ टैबलू पे, और ये पावर बीआई है, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई। तो माइक्रोसॉफ्ट का एक नया प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च किया था कुछ साल पहले, विच इज पावर बीआई। तो मेरा काम इन तीन से होता है, क्लिक सेंस, देन दिस इज माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई, एंड थर्ड इज टैबलू। ओके मैम, थैंक यू मैम। It's okay, thank you। Any other question? Any more question? Okay, ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सो डेटा विजुअलाइजेशन, जैसे मैं आपको थोड़ा तो अंडरस्टैंडिंग इसकी दे चुकी हूँ, बट ओवरऑल किस किस चीज़ों को आप डेटा विजुअलाइजेशन के फॉर्म में ले सकते हो, तो वो ये ऑलमोस्ट it covers almost everything। whatever you see that can be converted into a data visualization form। information technology है, कोई natural science है, statistical analysis है। statistical analysis मतलब जो भी आप
रेग्रेशन थ्योरीज वगैरह पढ़ते हैं, अगर आपको 10th-12th का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन याद हो, सो दैट इज ऑल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ग्राफिक्स है, कोई ह्यूमन इंटरेक्शन भी अगर आप कर रहे हो, सपोज दो ह्यूमन भी बात कर रहे हैं, उनके बीच में भी जो बातें हो रही हैं, दैट कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू डेटा विजुअलाइजेशन थिंग। डेटा मैनेजमेंट भी इसका पार्ट है कि आपको डेटा मैनेज करके उसको एक अच्छे फॉर्मेट में दिखाना है, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ विजुअलाइजेशन। परसेप्शन एंड कॉग्निशन, ये थोड़ा सा एडवांस है, आई विल नॉट डिस्कस इट हियर। एक्सप्रेशन एंड कम्युनिकेशन, अगेन वही ह्यूमन थेरेपी। ज्योग्राफी इंफॉर्मेशन, किसी भी ज्योग्राफी की इंफॉर्मेशन को रो वाइज शो करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है कि हमारे पास इतनी सारी कंट्रीज हैं, इतनी सारी सिटीज हैं, तो हम किस किस को रोज के फॉर्मेट में या किस किस को लिख लिख कर आप शो करोगे। सो ज्योग्राफी इंफॉर्मेशन को सबसे अच्छा बेस्ट तरीका होता है कि आप एक मैप पर उसको प्लॉट करो। So these are all, I mean, whatever we see, whatever we do, whatever we talk, that can always be converted into data visualization. अभी मैं आपको जैसे रिसेंट एक नई रिसर्च बताती हूँ। नेचुरल साइंस इज समथिंग, जैसे आजकल टैबलू पे भी और पावर बीआई जो नए टूल्स हैं, इन पे एक नए तरीके का फीचर आया हुआ है, एक एडवांस फीचर आया हुआ है। सपोज मैं एक नई यूजर हूँ, मैंने टैबलू ओपन किया, अपने पास चेक कि मेरे को टैबलू नहीं आता, नहीं आती, मुझे नहीं पता कि ये टूल कैसे काम करता है। उस केस में उन्होंने एक नया फीचर दिया है वेयर यू कैन आस्क डेटा। ठीक है, आप कोई डेटा उसमें कनेक्ट किया, वहां पर आप उसे पूछ सकते हो, मतलब यू नीड टू ओनली से दैट कि व्हाट इज द सेल्स इन टॉप 20 सिटीज, तो वो उस पर हो सकता है। मतलब यू नीड नॉट टू डिजाइन, आपको कुछ भी अपने हाथ से काम नहीं करना। सो दैट इज नेचुरल साइंस, मतलब जो आप बोल रहे हो उसको टूल अंडरस्टैंड कर रहा है, उसको अंडरस्टैंड करके वो उसकी डिजाइनिंग दे रहा है। सो दिस इज वेरी एडवांस फीचर। so that is still happening in Tableau and other जो visualization tool है। so ये नए नए features हैं, they are keep integrating, they are keep getting updated in different tools। एंड डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स के बारे में तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। ओके, सो नाउ द सेशन इज अप टू यू। आप लोग कुछ आपके क्वेश्चन है, कुछ आप पूछना चाहते हो, सो दैट वी कैन टेक इट अप नाउ। एक्चुअली अभी बहुत फर्स्ट सेशन है ये, तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहती थी। ये सेशन मेरा मोटिव और मेरा पर्पस ये था कि वेयर यू गाइज आर स्टकिंग, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड कि फाइनल सेमेस्टर में या थर्ड सेमेस्टर में किस तरीके के सिनेरियो हमारे पास होते हैं, किस तरीके का मेंटल प्रेशर, किस तरीके की एक्सपेक्टेशंस या कंफ्यूजन्स, सो दैट वी कैन डिस्कस। ये जो मैंने विजुअलाइजेशन के बारे में आपको बताया, सो दिस इज वन ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में इतना ज्यादा स्कोप है, इतना ज्यादा, मतलब यू हैव विजुअलाइजेशन टू जंप ऑन, जहां पर आपको जॉब्स मिल सकती हैं। यू हैव डेटा मैनेजमेंट टू जंप ऑन, वहां पर आपको डिफरेंट जॉब्स मिल सकती हैं। देन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, वेब डिजाइनिंग होता है। अभी तो रोबोटिक्स में बहुत ज्यादा स्कोप है, रोबोटिक्स भी एक तरीके का एक सेगमेंट है जहाँ पे यू कैन मेक योर करियर, जहाँ पे यू कैन ब्लूम योर करियर। सो दिस इज जस्ट वन पार्ट। उसके अलावा तो समुद्र है, मतलब कंप्यूटर साइंस, तो आई शुड से कि इट इज जस्ट ओशन। आपको बस ढूंढने की जरूरत है कि आपको डेटा टेस्टिंग में जाना है, सो इट्स अबाउट योर इंटरेस्ट। मेरे साथ क्या था, आई मीन अंजना मैम, स्नेहा मैम, अदर फैकल्टीज मेरे बारे में बहुत अच्छी सी चीजें बता सकते हैं, दैट आई यूज्ड टू बी वेरी क्रिएटिव। तो इसलिए मैंने ये फील्ड चुना विजुअलाइजेशन का, वेयर आई कैन शार्प माय क्रिएटिविटी स्किल। तो अभी डैशबोर्ड पे भी मैं जो काम करती हूँ, टूल्स पे भी मैं जो काम करती हूँ, तो मुझे पेंटिंग का शौक है, स्केचिंग का शौक है, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, पैसा भी कमा के देखते हैं इससे, लेट्स मेक दिस टूल एज योर कैनवस एंड ड्रॉ योर कलर्स ऑन इट। सो दैट वाज माय थिंकिंग एट दैट टाइम, बट इट टोटली अपॉन योर इंटरेस्ट। जैसे मेरे साथ कई सारे और भी मेरे कोलीग्स थे, SIRTE से ही पास आउट थे, सो दे आर डूइंग वेरी गुड जॉब इन डेटा टेस्टिंग, दे आर डूइंग वेरी गुड जॉब इन वेबसाइट डिजाइनिंग। सो आप कुछ भी आपका डाउट हो रिलेटेड टू डिफरेंट सेगमेंट्स क्या क्या होते हैं, सो दैट वी कैन डिस्कस। ओवर टू यू पीपल, लेट्स। क्या हुआ दिशा?
Ankita, I have one question. Ankita, Yes, ma'am. Ankita, please let us know the student that how they can prepare for today's competition in industry, how they can prepare themselves and technically what kind of software is right now mostly in use, because we are following the RGPV curriculum and you know that in RGPV latest syllabus is not being covered yet. So kindly let us know what kind of syllabus a student should cover so that they can get benefited by the CSE placement. Okay. Ma'am, it's a very good question because we also face the same issue कि आरजीपीवी का जो करिकुलम होता है, आरजीपीवी का जो सिलेबस होता है, उसमें सारी चीजें कवर अप नहीं होती. इनफैक्ट जो जॉब के लिए आपको चाहिए वो तो कभी भी कवर अप नहीं होती. सो इट्स ऑल अबाउट द थ्योरेटिकल एंड फंक्शनल थिंग्स जो कि हम कवर करते हैं. सो फॉर प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक Google and YouTube videos are the main source. You just have to find out कि आपको किस तरीके की जॉब्स या किस तरीके की प्लेसमेंट अभी कंपनी या कॉलेज ऑफर कर रहा है. लाइक मेरे टाइम पे मुझे याद है कि TCS वाज द फर्स्ट कंपनी जो आई थी. सो पहले आप TCS के बारे में पढ़ो, आप ये पूरा लिस्ट निकालो कि कंपनीज कौन कौन सी प्लेसमेंट के लिए हमारे कॉलेज में आ रही हैं. उन कंपनीज के बारे में पढ़ के कि ये किस किस सेगमेंट में काम करती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग लो. मतलब किसी भी कंपनी में प्लेसमेंट में बैठने से पहले आपको एक थॉरो अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि कंपनी काम क्या करती है. क्योंकि ये मैंने बहुत ज्यादा देखा है कि हम प्लेसमेंट में तो बैठ जाते हैं पर हमें कंपनी के बारे में ABC भी नहीं पता होता. सो जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ कंपनीज आर देयर, वो किस तरीके का काम है. और एप्टीट्यूड के लिए आई थिंक GMAT की एक बुक आती है. आपको उतने हाई लेवल की अगर स्टडीज नहीं करनी है तो एक नॉर्मल आई थिंक RD शर्मा, या आप एक बार गूगल पे एक बार सर्च कर सकते हैं कोई भी. तो एप्टीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इंटरव्यू हमेशा सेकंड स्टेप होता है, उसके पहले रिटन टेस्ट ही होता है. एंड रिटन इज टोटली बेस्ड ऑन एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग. तो ये दोनों चीजें क्रैक करना इज एसेंशियल. आपका कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, आपकी नॉलेज कितनी भी शार्प हो, बट अगर आप एप्टीट्यूड नहीं क्लियर कर पा रहे हो देन इट विल मेक नो सेंस. Yes, anyone else? So proceed, Komal. Now I would like to welcome our HOD ma'am, Dr. Kalpana Rai, to say a few words. Thanks for inviting me. क्या है? Good morning, all of you. I hope whatever the knowledge shared by Ankita, or whatever I must say, instead of knowledge, it's an experience, है ना? क्योंकि वो आपकी ही सीनियर है, आप में से ही आज वो आई है आप लोगों से मिलने यहीं से निकल के. तो आई थिंक जो भी उसने अपने एक्सपीरियंस शेयर करे, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, है ना अंकिता? So hope you'll gain something positive, some good things from Ankita. And और कुछ भी आपको अगर उससे पूछना हो, कुछ डाउट्स हो, डाउट्स इन द ऐसा कुछ नहीं है, लेक्चर है, जनरल चीजें जो आप चाहते हो कि हाँ एक्चुअली प्रैक्टिकली कंपनी ज्वाइन करने के लिए या कंपनी ज्वाइन करने के बाद क्या रिक्वायरमेंट है, किस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है, यू कैन आस्क. ठीक है? Thanks Anjana ma'am for organizing, and thanks Ankita for accepting our invitation. Thank you so much, ma'am. Thank you. Ankita, you say some advice for the group discussions also, because most of the students are going fail in group discussion. Okay. So about group discussion, yet main point is confidence. मतलब कई बार ऐसा होता है कि टॉपिक आपको नहीं समझ में आते और वो टॉपिक को सुनकर ही हम नर्वस हो जाते हैं. बट इट हैपेंस, मतलब हर चीज की नॉलेज हर किसी को नहीं हो सकती. सो इट मे हैपन कि आपको उस टाइम पे जो टॉपिक मिला है वो आपको नहीं आता, बट देन अंडरस्टैंड दैट वन पॉइंट कि आप फिर वहां पर अकेले नहीं हो जिसको वो पॉइंट नहीं आता. सो द मेन की इज कि अगर कोई टॉपिक नया है दैट्स ओके, बट वो सबके लिए नया है. सो जस्ट डोंट लूज द कॉन्फिडेंस. आपको जो मेन
एक आपके पास की फैक्टर है वो यही है कि मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से सीखा है इतने बड़े प्रोफेशनल करियर में, इंटरव्यूज भी इतने सारे दिए हैं मैंने, 5 कंपनीज अब तक स्विच कर चुकी हूँ. सो व्हेन यू डोंट नो एनीथिंग जस्ट से नो बट से दैट कॉन्फिडेंटली. तो अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में 100% नहीं पता है और अगर 20% भी पता है तो जस्ट से दैट 20% कंटेंट ना इन वेरी कॉन्फिडेंट मैनर. क्योंकि ग्रुप डिस्कशन में जनरली जो चीज जज होती है, जिस चीज के लिए ग्रुप डिस्कशन रखा जाता है, वो सिर्फ 2 ही चीजें होती हैं. एक तो आपको कम्युनिकेशन स्किल और दूसरा होता है कॉन्फिडेंस. तो अगर आपकी इंग्लिश ठीक है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है उस चीज को बोलने का, देन आई थिंक एनीबडी कैन जस्ट पास ऑन इट. Anyone else? No one? So Ankita, once again, thank you. And chat में आप यदि if you want कोई भी कुछ पूछना चाहता है तो I can give phone number of Ankita और mail ID Ankita chat में डाल दो, chat चल रहा हो तो yes. Mail ID और phone number you can give if possible. Then यदि किसी को कुछ पूछना होगा तो they will ask. Okay. Okay, Ankita, thank you once again. And Komal, you want to say something? Thank you, ma'am. Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am, for delivering such a knowledgeable session lecture. It was very informative for us. Thank you, ma'am. Thank you. Anytime, anytime. Okay. I'm more than happy to help you people because I can understand क्योंकि मैं भी कभी उसी situation में थी. Yes. Okay, Ankita. Then. Okay. Thank you, everyone. Thank you. Shall we end meeting?